Hello everyone. So here we are going to discuss a question from the topic electrostatics, and it is very important topic in the point of view of JEE Advanced. So the question is: a uniformly charged right-angled triangle lamina ABC is shown in the figure. Acute angle at the vertex A is theta. If the potential of vertices A and B are VA and VB respectively, then find the potential of vertex C. So basically, this question I have taken from the book Pathfinder for Olympiad and JEE Advanced Physics book, right? So let's discuss this question. So I think आपको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहिए, right? So let's discuss the solution. So guys, इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले कुछ एक बेसिक बातें यहाँ पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. यू कैन सी मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है. PRS एक ट्राइंगल है. एक्चुअली ये भी एक लेमिना ही है. एंगल थीटा है बिल्कुल इसी तरीके से. मान लीजिए इस PRS ट्राइंगल के का जो हाइपोटेन्यूस है उसका साइड हम मान लेते हैं x है, राइट. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि दैट PR जो है वो हो जाएगा x cos थीटा एंड RS हो जाएगा x sin theta cos theta and x sin theta. Now see, as we know the potential of point A, vertex A and vertex B, and now we are interested to find the potential at point C as it is given in the problem. So there is no information of charge distribution is given. I mean, no charge is given that how much charge is distributed in this area, and no dimension is given. I mean, what is the length and the width? I mean, length or height or base? It is not given at all, right? So dimension भी नहीं दिया हुआ है और charge जो sigma है वो कितना है ये भी नहीं दिया हुआ है, right? So क्या यहाँ पे हम लोग normal तरीके से इसको नहीं कर सकते, right? It will be very difficult to solve by some normal or some standard method, right? So here we can use the concept of dimensional analysis. Dimensional analysis से ये question बहुत ही आसानी से हो जाएगा. इस लैमिना को देखिए PRS, right? So can I say in general guys we know that potential, how it varies. Potential is proportional to Q and inversely proportional to some linear dimension, right? In this particular case, let us assume that linear dimension I'm taking as x, right? And that x you can see is a kind of hypotenuse for this particular case. But dimensionally, I can write that V is proportional to some charge and it is inversely proportional to x, right? Now see, if this if you see closely, what is the area of this lamina? Area is basically half into x sin theta into x cos theta. So somehow area is depending on the square of x square, right? So area is proportional to x square. So as here charge is uniformly distributed in the lamina, can I say that Q is proportional to area square, and area, that means Q is proportional to some x square, right? So from both the expression you can see, we can write here that V is somehow proportional to x square by x. That means V is somehow proportional to x, where x is hypotenuse. I am taking this x as hypotenuse, right? You can take any other side also because but I am taking x because according to this x I have defined this x cos theta and x sin theta, so there is no worry, right? आप किसी भी एक एक्सिस को, किसी भी एज को लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो एज यू कैन सी दैट v इज प्रोपोर्शनल टू x वेयर x इज द हाइपोटेन्यूज. अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या इसके अकॉर्डिंग क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दैट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P is proportional to x. Let's say this Vp is some k1x. जहां पे ये ध्यान रखना है that ये k1 का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k1 जो है, ये स्पेशली मैंने इस पॉइंट P के लिए लिया है जहां पे एंगल थीटा सबटेंडेड है, राइट? लेकिन अगर मैं Vs की बात करूंगा, so in that case it is obviously proportional to x according to our assumptions. We have taken that it is proportional to I mean x, where x is a hypotenuse length. So hypotenuse length, right? So Vs is proportional to x, but in this case, this Vs will not be equal to k1x, but some other constant k2x.
You can write this. And in similar fashion, guys, can we write that VR is again proportional to some x, but again this time VR will be some k3x. So it's very simple, right? नाउ अगर आप इसको समझ में आ गया है आपको, अगर तो क्या इसी के अकॉर्डिंग क्या मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या लिख सकता हूँ दैट वी ए इज समहाउ प्रोपोर्शनल, लेट्स से दिस साइड इज ए, तो कैन आई राइट दिस एज ए, राइट? लिख सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वीपी इज प्रोपोर्शनल टू दिस एक्स, so can I write that VA is some K1A, VB is some K2A, and VC is some K3A, right? We can write this. I hope you can understand that how हमने कैसे इसको पहले समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने जस्ट रिप्लिकेट किया इस चीज को, राइट? नाउ सी, ये अगर A है तो ऑब्वियसली दिस इज A cos थीटा एंड दिस इज A sin थीटा, राइट? अब देखिए हमें सी पॉइंट का पोटेंशियल जानना है, हमें ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है. सो व्हाट वी विल डू, लेट मी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन हियर. सो दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी, वर्टेक्स सी ऑन लाइन ए बी, और ये परपेंडिकुलर है. ध्यान से आप अगर देखो, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट डी है, राइट? अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं ये ट्राइंगल को देखो सेपरेटली सी बी ए डी, और अगर ये ट्राइंगल को सेपरेटली देखो दैट मीन सी डी ए, तो इन ट्राइंगल सी बी डी अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं इस ट्राइंगल सी बी डी के अकॉर्डिंग, ये तो मैं लिख रहा था ट्राइंगल ए बी सी के रेस्पेक्ट में. अब थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आप अगर ध्यान दो यहाँ पे ट्राइंगल बी सी डी को लेकर के अगर सोचो थोड़ा सा, तो ये थीटा है, क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? तो क्या ये थीटा हो जाएगा? वेरी सिंपल. ओके, लिख सकते हैं ऐसा. तो अगर आप बीसीडी देखो तो बीसीडी कुछ इस तरह से आया है, वेयर दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज बी, और ये है हमारा एंगल थीटा. गाइस उसी प्रकार से अब ट्राइंगल ए सी डी को भी देख सकते हैं, जहां पे ट्राइंगल ए सी डी में आपको देख पा रहे हैं दैट दिस इज एंगल थीटा, ये हमारा ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है. क्या मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल जो है वो सी पॉइंट पे वो दोनों की वजह से होना चाहिए, इस लेमिना वाले चार्ज की वजह से होगा और इस लेमिना वाले चार्ज की वजह से भी होगा? यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू ट्रायंगल बी सी डी जो भी हो, और पोटेंशियल ड्यू टू एट सी ड्यू टू ट्रायंगल ए सी डी जो भी हो, क्या दोनों का सम ही टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी देगा? बहुत ही सिंपल सा सेटअप मैंने लिया है यहाँ पे, दो ट्राइंगल का, दोनों लैमिना को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है. अब देखिए वीसी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल बीसीडी हमने अभी जस्ट देखा कि जहां से थीटा सबटेंडेड है, उस केस में देखिए ध्यान से, इस बीडी का आई मीन दिस थीटा इज एंड दिस इज 90 डिग्री, और क्या सीबी यहाँ पे एक तरह से हाइपोटेन्यूस है ए साइन थीटा, और इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ए कॉस थीटा इज द हाइपोटेन्यूस, राइट, इन दिस. तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि वीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा वाले सबटेंड, जहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड है, क्या हमने लिखा था K1 इंटू ए, बिकॉज वहां पे ए साइड था ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में. बट क्या यहाँ पे सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हाइपोटेन्यूस का जो लेंथ है क्या वो ए साइन थीटा है गाइस? वैसे क्या मैं वीसी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल एसीडी लिख सकता हूँ, इट विल बी नथिंग बट K2A cos थीटा, सॉरी यहाँ पे cos थीटा होगा बिकॉज AC का लेंथ A cos थीटा है. तो आप देख सकते हो C का इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल टू A sin थीटा होना चाहिए, एंड यहाँ पे C का प्रोपोर्शनल टू A cos थीटा होना चाहिए, राइट? बट K2 और K1 कैसे ले रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज रिजल्ट विल बी नॉट बी ट्रू, राइट? सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C देन? देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C कितना हो जाएगा? K1A sin थीटा प्लस K2A cos थीटा. ओके गाइस, क्या K1A का मतलब VA था? देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस एनालिसिस यू कैन सी इट इज A1 sin VA sin थीटा एंड K2A is VB cos theta. So cos theta, theta VA and VB is given. So
दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर राइट फॉर VC। तो ये रहा हमारा VC का पोटेंशियल। गाइज वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर दैट अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि D पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सो मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट D आपसे पूछ लूँ गाइज, तो गाइज कैन आई से दैट पोटेंशियल एट D पॉइंट भी एक्चुअली में पोटेंशियल एट पॉइंट D ड्यू टू ट्राइंगल BCD जो भी होगा प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट D ड्यू टू ट्राइंगल ACD जो क्या दोनों का सम ही तो होगा VD राइट, जैसे कि हमने C के लिए बात करा। लेकिन D पॉइंट जो है वो एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल वाला पॉइंट है। आप ध्यान से देखो इस वाले को, क्या राइट एंगल वाले के अकॉर्डिंग क्या VR इक्वल टू K3X था, तो क्या यहाँ पे VD इक्वल टू क्या लिखना चाहिए हमें, ध्यान सोचिए। अगर यदि तो क्या VD इक्वल टू हमें लिखना चाहिए K3 of and the hypotenuse of this triangle that is K3A sin theta in triangle BCD, and इस वाले में हमें लिखना चाहिए K3 into A cos theta, very simple right। और क्या इस VD को, क्या यहाँ पे हम लोग K3A को आप देख सकते हो गाइस। एक बात और है यहाँ पे, देखिए क्या हम लोग BC को लिख सकते हैं, अगर आप इस ट्राइंगल ABC को देखिए, इन ट्राइंगल ABC क्या VC को हमने पहले यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए K3A है, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो क्या मैं यहाँ से अगर K3A कॉमन ले लूं तो इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड K3A we already know is VC, right? So let me put here VC sin theta plus cos theta। तो देखिए इस तरह से हम पॉइंट D का भी पोटेंशियल पता कर सकते हैं, एंड दैट पोटेंशियल एट पॉइंट C हो जाएगा VA sin theta plus VB cos theta into sin theta plus cos theta, and this is the required answer। and actually in this problem हमें तो C पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया है वैसे, बट हम लोग D पॉइंट का भी पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको तो ये लेफ्ट राइट साइड में जो आई मीन हाउ यू आर चेंजिंग दिस, यू नो कैसे आप इस ट्राइंगल को लैमिना को आप कैसे पोटेंशियल के साथ रिलेट कर रहे हो डायमेंशन के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ओनली आपने ये VA VB और VC को डिफाइन किया, एंड फिर हमने एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको दो लैमिना में कन्वर्ट कर दिया है, एंड अकॉर्डिंगली हमने दोनों का अलग अलग से पोटेंशियल को ऐड किया, बिकॉज VC यानी कि C पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो दोनों लैमिना के वजह से आएगा, दैट इज K1A sin theta and K2A sin cos theta। So you can share this video with your friends who are preparing for JEE, right? So बाय बाय एंड टेक केयर। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग कुछ और अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।